This is first lecture of physics. The name of the chapter is Physical World. Only the overview is given in this chapter, no calculation. So mainly before start the physics, we have to know the definition of physics. What is physics? Well, we know that we know about the matter. Matter means anything which is mass and occupies some space. And inside the matter, we have molecules, atoms, proton, neutron, electrons. We can say small particles. They are tightly binded in solid state, weakly binded in liquid state, and very weakly binded in gaseous state. Okay, so internal mechanism we generally studied in what? Chemistry. And the external mechanism is studied in what? Physics. Okay, so physics is the branch of science dealing with nature and natural phenomena. Means external mechanism of what? Matter. So mainly we have to know the scope of physics. Physics has a vast scope. It's mainly in physics we will study some basic principles, basic law, and the application of physics generally studied in various branch of engineering. Okay, so we have so many basic principles, so many law, and they have some applications, real life applications. So due to physics, real life becomes so comfortable. So you can write large number of applications of physics in the scope of what? Physics. Next, we have to know difference between physics and technology. Okay, so technology is the applications of what? Physical principle of physics. For example, Bernoulli's theorem is a principle of what? Physics. And using Bernoulli's theorem, we generally made what? Aeroplane. So aeroplane is the technology. So current produce what? Magnetic field. This is the principle of what? Physics. So applying this principle, we generally made electric fan. Okay, so changing magnetic field can produce what? Electric current. So this is the principle of what? Physics. So but using that principle we developed what? Electric generator. So we have limited number of physical principle, but about that principle we have large number of what? Applications. And applications are made. Applications gives the technology. So we have a limited number of physical principle, but we have unlimited number of what? Technology. अभी तक टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप होना बाकी है. ओके, सो एक बात याद रखना, आगे से आगे अगर इंजीनियरिंग पढ़ना है, सो आपको फिजिक्स का प्रिंसिपल जानना बहुत ज़रूरी है कि इसी का जाके वहाँ पे एप्लीकेशन होगा. जिसका फिजिक्स यानी यू कैन से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसका स्ट्रॉन्ग होगा यानी प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग होगा, वही जाके एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर सकता है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपको साइंस बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके टेक्नोलॉजी डेवलप करना क्या होता है? आसान होता है. ओके, सो वी हैव सम टेक्नोलॉजी based on some principle of physics. So law of thermodynamics that give heat engine based on means heat engine work based on principle law of thermodynamics. Newton law of motion, rocket repulsion. You will get details when chapter will come. Bernoulli's theorem, aeroplane, conservation of gravitational energy into electrical, conversion of gravitational energy into electrical energy, hydroelectric power, Faraday's law of electromagnetic induction, electric generator, reflection of ultrasonic wave, sonar, total internal reflection of light, optical fiber, generation, propagation and detection of electromagnetic wave, radio and television, photoelectric effect, photocell, wave nature of electron microscope, digital logic of electronic circuit, that is calculator and computer, control nuclear fission, nuclear reactor. It means we have
some number of principle of physics, and based on that principle we generally developed what, some useful technology for real life. Next, physics in relation to society. You can write so many means technology we used to develop our society. Okay, nowadays electronic media are playing an important role in our society, developing our society. Okay, so that is also application of what, physics. Next, in physics, mainly in class 11, rule of force will be important here. So we have some basic classification of forces, basic type of forces in nature. And in earlier day now, work was done by living body mainly. The life was very hard. So when living body do work, their energy will be lost. When work is done, energy is converted generally, one form to another form. For example, now when we caught a ball, suppose ball was in rest. So what is the amount of kinetic energy of rest ball? 0. But when it was thrown by somebody, the work was done. So energy was lost of that body, that person, and ball was moving, supposed to moving. तो बॉल को हम लोग कैच कर लिया, तो साउंड निकलते हैं, तो साउंड निकलते हैं तो क्या होगा, बॉडी का जो एनर्जी गेन हुआ था वो अब फिर लॉस हो गया. सो जहाँ पे भी वर्क होता है अगेंस्ट द बॉडी को रुकाने के लिए या बॉडी को भगाने के लिए, तो किसी एक एनर्जी का लॉस होगा तो किसी का गेन होगा, क्योंकि एनर्जी को भी क्रिएट व डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. एनर्जी कैन बी ओनली कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ओके, तो अर्लियर डे आदमी लोगों को पता नहीं था कि नेचुरल फोर्स से भी वर्क हो सकता है. तो मशीन्स में जनरली वर्क बेस्ड ऑन नेचुरल फोर्स. सो नेचर का फोर्स से वर्क होता है तो दूसरा में कन्वर्ट हो जाता है. तो ह्यूमन लाइफ क्या होता है, बहुत आसान हो गया. सो आगे तक ये भी पढ़ोगे आप लोग. देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्स मेनली, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. उसका वास्ट नॉलेज चाहिए होगा. ओके, बट यहाँ पे हम लोग सब नेचुरल फोर्सेस पढ़ना है मेनली. सो दे आर नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लास 9 में भी आप लोग पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स. रीजन बिहाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास. और ये फोर्स तभी एप्लीकेबल है जब बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, छोटा छोटा बॉडी के लिए नहीं होता है. तो लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ेंगे. उसके लिए हम लोग एक चैप्टर है, डिटेल्स वी हैव टू गो थ्रू इट. जैसे अर्थ सरफेस में जो भी बॉडी बंधा हुआ है, हाँ, हम लोग कोई बॉडी के ऊपर थ्रो करते थे वापस आ जाता है. उसका रीजन क्या है, वी आर बाइंडेड ऑन अर्थ सरफेस विथ ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट डे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स 2 चार्ज का बेस में फोर्स होता है. हाँ, दिस फोर्स में भी अट्रैक्टिव, दिस फोर्स में भी रिपल्सिव. अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव होगा. यानी सेम चार्ज रिपेल इच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर. एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स को थोड़ा बहुत लेट से समझ में आया आदमी लोगों, क्योंकि ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का बेस में होता है. ये कोई चार्ज का वजह से नहीं होता है, न्यूट्रल स्पेसिस का वजह से होता है. सो न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स होता है, बहुत पास में. मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ में रहेगा न्यूक्लियस में, देन दे विल बी बाइंडेड इच अदर. द रीजन बिहाइंड द न्यूक्लियर फोर्स इज मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी. वो थोड़ा डिटेल्स कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है. सो वो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग क्लास 12 में जाकर आप डिटेल्स मिलेगा. एंड लास्ट वन इज वीक फोर्स. वीक फोर्स केमिकल रिएक्शंस होता है मेनली. रीजन बिहाइंड वीक फोर्सेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो भी आपका थर्मोडायनेमिक्स पे जाके डिटेल्स समझ में आएगा. सो नेक्स्ट वी हैव टू नो some law in nature. So first one is law of conservation of linear momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. ओके, ये अब क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ में, कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब 2 बॉडी का टोटल मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है. जैसे मैंने एक बॉल को फेंका, जाके किसी में टकराया, फिर वापस आया, मतलब कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा पूरा सिस्टम का, कोलिजन का बाद भी मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा. तो ये प्रैक्टिकली हम लोग देखना होगा. वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. अभी बेसिक है, यहाँ पे उतना डीपली समझ में नहीं आएगा. जब चैप्टर्स आएगा देन यू विल गेट द कॉन्सेप्ट. हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगा. तो नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ऑलरेडी आई टोल्ड यू, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड.
एक का लॉस होगा तो दूसरे में कन्वर्ट होगा। ओके, जैसे बॉल को हम कैच करेंगे तो साउंड निकलेगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हुआ है, हाथ में थोड़ा हीट प्रोड्यूस होगा तो हीट में कन्वर्ट हुआ है। ओके, सो बैटरी डिस्चार्ज हुआ है तो कहीं पे भी जाकर बॉल हुआ है। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट destroyed, ओनली वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। थर्ड वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये तो आपका रोटेशन मोशन में समझ में आएगा। कोलिजन से पहले एंगुलर मोमेंटम, कोलिजन के बाद टकराने के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है। वहाँ पे तो पूरा टोटल कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा एंगुलर में आपका टॉर्क वगैरह आएगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सिंबल कॉन्सेप्ट ऑल विल बी चेंज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, already I told that inside any atom, any matters, we have three particles, proton, neutron and electron. So charge of proton is positive and charge of electron is negative, and the value of charge is 1.6 into 10 to the power minus 19. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, बट वैल्यू इज सेम, वैल्यू सेम है। तो वैल्यू सेम है तो आपका ये चार्ज को हम लोग क्रिएट पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अगर काट के छोटा नहीं कर सकते। तो पूरा यूनिवर्स का चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। जैसे एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होगा दूसरे में गेन होगा, तो चार्ज को भी हम लोग क्रिएट पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये सब एनालिसिस करना है, यू हैव टू एनालाइज, समझना है डिटेल्स। ओके, एंड एक बात याद रखना, अब 9th तक हम लोग ना सबसे कांस्टेंट मान के चला था, ठीक है, और डायरेक्शंस का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। यहाँ पे जैसे फोर्स हो गया, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का ना वैल्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग सेकेंड चैप्टर में पूरा पढ़ना है। से जैसे मान लो कि आप कितना मेहनत कर रहे हो ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेहनत तो करना है, हाँ हार्ड वर्किंग करना है, बट हार्ड वर्किंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट हार्ड वर्किंग। स्मार्ट हार्ड वर्किंग का मतलब है आप किस हिसाब से मैनेज कर रहे हो, आपका डायरेक्शन कैसा है। हाँ, जैसे आप थोड़ा बहुत मान लो 2-3 आवर्स आप पढ़ते हो पर डे, उसके बाद बाकी टाइम आप क्या करते हो, दूसरा जगह में दिमाग लगाते हो, तो आपका जो माइंड होगा, वो आपका एफर्ट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने से डायरेक्शन मिसमैनेजमेंट हो गया तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। ओके, सो अपना माइंड को कंट्रोल रखना, स्टेबल रखना, सही डायरेक्शन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि एक बॉडी का ऊपर हम लोग बहुत सारा फोर्स लगा, लेकिन रैंडम में लगा, उल्टा उल्टा लगा दी, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो सिमिलरली हम लोग माइंड में जो एफोर्ट लगाते हैं हम लोग, दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। एफोर्ट का साथ साथ किसका ऊपर डिपेंड होगा, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। सो मैं धीरे धीरे फिजिक्स को बहुत हम लोग आराम से एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे, और फिजिक्स पढ़ाते वक्त में रियल लाइफ को भी लेके चलेंगे। आई विल कैसे हम लोग डायरेक्शन देना होता है, किस हिसाब से ध्यान देना होता है, कहाँ पे फोकस ज़्यादा करना होता है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, विल गेट आइडिया फ्रॉम फिजिक्स। फिजिक्स को दिल से पढ़ना है। मैं जो इंट्रोडक्शन क्लास दिया है आज, धीरे धीरे हम लोग तो मेन कंटेंट में आएंगे, एंड इसके लिए मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बहुत कोई है कि आगे मेडिकल पढ़ने के लिए सोचते हो, बट ना मेडिकल के लिए आप लोग 3 सब्जेक्ट चाहिए, मैं मानता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सोचते हैं मैथमेटिक्स का कोई एंट्रेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ना फिजिक्स को समझने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए वी मस्ट हैव कॉन्सेप्ट, वी मस्ट नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री चाहिए होगा। तो एटलीस्ट 11th-12th में ना आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको मैथमेटिक्स जानना बहुत जरूरी है। ऐसे भी अब डॉक्टर भी बन जाओगे ना, आपको एस्टिमेट करना होगा। मैंने बहुत जगह में देखा है, बहुत सारा मेडिसिन लिख देता है ना, तो क्या होता है, एक्यूरेट मेडिसिन लिखने के लिए भी आइडिया चाहिए। सो रियल लाइफ को भी ठीक करने के लिए ना कैलकुलेशन सही होना बहुत जरूरी है। सो वी नीड स्ट्रॉन्ग कमांड इन मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ ऑल्सो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जस्ट ट्राई टू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर channel for expansion. Thank you.